Hello students, we had started the chapter trigonometric functions and in previous lecture we had seen the allied angles formula. हम लोग ने देखे sin pi by 2 minus theta, cos pi by 2 minus theta, tan pi by 2 minus theta क्या होता है. Similarly sin pi by 2 plus theta और sin 2 pi minus theta और sin 3 pi minus theta. मतलब इस टाइप के जितने भी allied angles होते हैं वो हम लोग कैसे निकालते हैं हम लोग ने previous lecture में देखे. Now we will proceed. First we will start with the topic trigonometric equation. Okay, so what is trigonometric equation? So see here, an equation involving trigonometric functions is called trigonometric equations. For example, if it is written sin theta is equals to 1 by 2, this is equation involving the trigonometric function with variable. Okay, an equation involving trigonometric function. Trigonometric function के साथ में variable रहना चाहिए, कोई भी unknown theta रहना चाहिए. sin theta is equals to 1 by 2. This is trigonometric equation. Or you can say root 2 cos theta minus 1 is equals to 0. This is also a trigonometric equation. An equation involving trigonometric function is called trigonometric equation. Okay. Now next topic is trigonometric solution. Solution of trigonometric equation. Solution of trigonometric equation. Now what is solution of trigonometric equation? For example, sin theta is equals to 1 by 2 is given. So we want the value of theta which satisfies the equation. Okay. So what is the solution of trigonometric equation? A value of a variable which satisfies the equation is called solution of trigonometric equation. Okay. So we'll see one example. Sin x is equals to 0. So sin x is equals to 0, that means x may be 0 or pi or minus pi or 2 pi और माइनस 2 पाई एंड सो ऑन. बिकॉज सिर्फ साइन 0 0 नहीं होता है, साइन पाई भी 0 होता है, साइन माइनस पाई भी 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन माइनस 2 पाई भी 0 होता है. ओके. सो हम लोग ने क्या देखे? फर्स्ट वी हैड सीन द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? एन इक्वेशन इन विच वी हैव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन इट विल बी कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. नाउ व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल which satisfies the equation is called as solution of trigonometric equation. For example, this is trigonometric equation and the variable is x. So value of 0, pi, minus pi, 2 pi, minus 2 pi and so on, this kind of values satisfy this. So these are the solution of this equation. Because sin 0 0 होता है, sin pi 0 होता है, sin minus pi 0 होता है. Okay. So this will be called as the solution of trigonometric equation. Okay. So these are solution of trigonometric equation. Trigonometric equation. Okay. So there are two types of solution of trigonometric equation. First is principal solution. Next one is general solution. So what is difference between principal solution and general solution? Principal solution is like we want the value between 0 to 2 pi. Principal solution में जो हमारा x रहता है या थीटा रहता है, जो एंगल रहता है, सो हम लोग सिर्फ 0 से लेके 2 pi के रेंज की वैल्यू लेते हैं. ओके. सो if I say principal solution for this, थीटा भी ले सकते हैं, x भी, जो भी वेरिएबल है. ओके. मतलब हमारा जो अननोन वेरिएबल है x है या थीटा है, दैट विल बी इन बिटवीन 0 एंड 2 pi. ओके. So if I say in this question what is the principal solution between 0 to 2 pi, there are only two answers, 0 pi and also 2 pi also. Okay. So principal solution इसका आएगा 0 pi
टू पाई। यूजुअली प्रिंसिपल सोल्यूशन सिर्फ 2 ही वैल्यू होती है, समटाइम्स ही ऐसा हो रहा है कि वो 3 वैल्यूज जा रही है। सो बिटवीन 0 से लेके 2 पाई, अगर हम लोग नंबर लाइन पे देख रहे हैं तो 0 से लेके 2 पाई में 3 ही आंसर, एक 0 है, एक पाई है, 2 पाई है। और जनरल सोल्यूशन में क्या आएगा, 0 पाई माइनस पाई, 2 पाई माइनस पाई, 3 पाई माइनस 3 पाई। ओके, सो जनरल सोल्यूशन मतलब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा n पाई, n बिलोंग्स टू z, मतलब ऑल द वैल्यूज विच सेटिस्फाइज दिस। अगर हम लोग इसको ग्राफिकली देखते हैं, ओके, दिस इज 0, दिस इज पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई। ओके, और हम लोग यहाँ नंबर लाइन पे ले रहे हैं माइनस पाई बाई 2, minus pi and all. Okay, so if I say this is 1 and this is minus 1, okay, so हम लोग साइन का ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो ऐसे होता है ना, पाई बाई 2 पे 1 हो जाता है, फिर ये ऐसे डिक्रीज होता है पाई पे, फिर 3 पाई बाई 2 पे माइनस 1 रहता है, फिर इस तरीके से सिमिलरली माइनस पाई बाई 2 पे माइनस 1 और इस पे। ओके, सो इफ़ आई से दिस ग्राफ, तो साइन माइनस पाई 0, साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, आगे जाके साइन 3 पाई 0 एंड हियर साइन माइनस 2 पाई 0। ओके, दिस इज माइनस 3 पाई बाई 2, दिस इज 2 पाई, सो माइनस 3 पाई बाई 2 पे 1 होता है और ये ऐसे 0। ठीक है, सो ये 1 रहेगा। हाँ, एक से, so this is graph for y is equals to sin x. Okay, so we know sin 0 0 होता है, sin pi by 2 1, sin pi 0, sin 3 pi by 2 minus 1, sin 2 pi 0 and similarly this. Okay, so we want principal solution for sin x is equals to 0. तो sin x इतनी सारी जगह पे 0 है और आगे ग्राफ कंटिन्यू है, बट प्रिंसिपल सोल्यूशन लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। तो 0 से 2 पाई के बीच में सिर्फ ये 3 वैल्यू आएंगी, 0 पाई एंड 2 पाई। This is the principal solution for this equation. Okay, now the general solution for this equation, general solution अगर हम लोग देखेंगे तो इनफाइनाइटली बहुत सारे आंसर्स है, 0 पाई माइनस पाई, 2 पाई माइनस 2 पाई, आगे 3 पाई माइनस 3 पाई। तो उन सब की जगह पे हम लोग ने एक जनरलाइज्ड फार्मूला लिख दिए कि सॉल्यूशन फॉर दिस इज x इज इक्वल्स टू n पाई, वेयर n इज इंटीजर। If I put n is equals to 0, you will get answer 0. If I put n is equals to 1, you will get answer 1. If I put n is equals to minus 1, you will get answer minus pi. If I put n is equals to 2, you will get answer 2 pi. n is equals to minus 2, answer minus 2 pi and so on. ठीक है, so हम लोग पहले देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, फिर उसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 2 टाइप का है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। ओके, सो जनरल सॉल्यूशन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम योर सिलेबस फॉर दिस एकेडमिक ईयर, सो ओनली we have to study the principal solution, which is very simple. Okay, so we will proceed further and we'll start with the exercise 3.1. very simple. Find the principal solution of the following equation. Exercise 3.1, question number 1. Find the principal solution of the following equation. We want the principal solution of these equation. Okay, first question, cos theta is equals to 1 by 2. So cos theta is equals to 1 by 2. First write down cos theta is equals to cos का which angle is 1 by 2. cos 60 is 1 by 2, that is pi by 3. cos pi by 3 1 by 2 होता है. Okay, so cos theta is equals to cos pi by 3. Okay, so एक तो हम लोग के पास है cos theta is equals to cos pi by 3. हम लोग को एक और एंगल ढूंढना है, बिकॉज मैंने बताया कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन यूजुअली 2 आंसर तो रहते ही है, यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन 3 आंसर जा रहा है, बिकॉज साइन कॉस सब 2 पाई पीरियोडिक रहता है. तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखती हूँ कि मुझे साइन 1/2 चाहिए, तो साइन 1/2 इधर पे एक आता है और एक इधर पे आता है, तो यूजुअली 2 आंसर होते ही हैं. सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 3 है. ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए,
one more angle which satisfies this. First angle is pi by 3 and we want one more angle which satisfies this. अब ऐसे क्यों? Just see once. अगर हम लोग cos का ग्राफ देख रहे हैं, रफ हम लोग देख रहे हैं, cos का ग्राफ ऐसे होता है, ये 0, this is pi by 2 pi and this is 3 pi by 2 2 pi. Okay, 1 -1. ओके, सो ऐसा रहता है, cos 0 1 होता है, cos pi by 2 0 होता है, करेक्ट. दिस इज द ग्राफ फॉर cos. ओके, सो cos थीटा 1/2 यहाँ पे रहेगा. सो 0 और 2 पाई का रेंज अगर हम लोग ले रहे हैं, ये 2 पाई है और ये 0 है. 0 और 2 पाई का रेंज में मुझे 1/2 कहाँ कहाँ मिलने वाला है. अगर हम लोग ऐसे इसको आगे कर दे ग्राफिकली, एक तो इस पॉइंट पे 1/2 मिलने वाला है और एक इस पॉइंट पे. Okay, see once, this is the graph for cos and we want principal solution, that means we want the answer between 0 to 2 pi. So 1/2 को अगर हम लोग ऐसे ग्राफिकली चेक करते हैं तो 1/2 एक इस पॉइंट पे आता है और एक इस पॉइंट पे. सो फर्स्ट पॉइंट हम लोग को मिल चुका है 60 डिग्री पाई बाई 3. अब ये पॉइंट ढूंढना है. सो कैसे हम लोग सर्च करेंगे इसको? cos थीटा वैसे ही लिखना है हम लोग को. कॉस की जगह पे मुझे कॉस लाना है, ठीक है. तो हम लोग ने जो फॉर्मूले देखे थे, मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 एंड मल्टीपल ऑफ पाई, तो मुझे रेशो चेंज नहीं करना है. रेशो विल नॉट चेंज, दैट मीन्स वी वांट मल्टीपल ऑफ पाई. मतलब कॉस है और मुझे यहाँ पे भी कॉस ही चाहिए, दैट मीन्स आई डोंट वांट टू चेंज द रेशो. सो इफ़ आई डोंट वांट टू चेंज द रेशो, मैं किस में जाऊँगी? मल्टीपल ऑफ पाई. सो मल्टीपल ऑफ पाई में मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा. ओके, अभी मल्टीपल ऑफ पाई में वी वांट ऐसा ऑप्शन हम लोग को, मतलब वी वांट सच काइंड ऑफ ऑप्शन वेयर साइन विल नॉट चेंज. ओके, सो कॉस की साइन अगर हम लोग देख रहे हैं, प्लस माइनस कहाँ चेंज नहीं होता है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहता है. सो आई विल राइट हियर 2 पाई माइनस पाई बाई 3. रीजन behind this is cos 2 pi minus theta is cos theta. ओके, और जो हम लोग ने ग्राफिकली इसको चेक किया था, ग्राफिकली 1/2 एक इधर आ रहा था जो कि 60 है, अराउंड 90 से पहले, और एक वैल्यू इधर आ रही है जो कि 2 पाई से जस्ट बिफोर है ना. सो 2 पाई माइनस थीटा, हम लोग ऐसा ग्राफिकली भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं. ओके, सो cos थीटा इज इक्वल्स टू cos पाई बाई 3, ये इजीली मिल गया है. अब क्या चाहिए मुझे? एक और आंसर चाहिए, बिकॉज प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो कि 0 और 2 पाई के बीच में होता है, इट कंटेन्स 2 आंसर्स. ओके, सो cos थीटा cos पाई बाई 3 की जगह पे आई हैड सब्स्टिट्यूटेड cos 2 पाई माइनस पाई बाई 3, बिकॉज cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, इसलिए cos थीटा की जगह पे हम लोग ने cos 2 पाई माइनस थीटा रखे. अब इसको हम लोग ध्यान कैसे देंगे कि मुझे यही फॉर्मूला लगाना है, कॉस है एंड मुझे कॉस ही उसको रखना है, दैट मीन्स मल्टीपल ऑफ पाई में जाना है. मल्टीपल ऑफ पाई में हम लोग के पास 4 ऑप्शंस होते हैं, 1 2 3 4. पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा. इन सब में क्या है? कॉस पॉजिटिव है और उसको मुझे पॉजिटिव ही रखना है, मतलब उसकी साइन चेंज नहीं करना है. तो कॉस की साइन कहाँ चेंज नहीं होती है? फोर्थ क्वाड्रेंट में. ओके, सो फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब कॉस की साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में चेंज नहीं होती, मतलब कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहता है? पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहता है. सो हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में मल्टीपल ऑफ पाई के हिसाब से क्या लेंगे? 2 पाई माइनस थीटा. ओके, सो cos थीटा is equals to cos pi by 3 and cos theta is equals to cos 3 2 जा 6 minus 1 5 pi by 3. ओके, तो ये दो आंसर है. such that ये जो pi by 3 है, this lies between 0 to 2 pi, as well as this 5 pi by 3 also lies between 0 to 2 pi. Therefore x is equals to pi by 3 and x is equals to 5 pi by 3 are required principal solutions. Okay, I hope this question is clear to you. We see one more question. Question number 2 is written,
cot theta is equals to root 3. Now see, we have the formula for sine, cos and tan. That means we also have the formula for cosec, sec and cot. Okay, because sine and cosec have same property, cos and sec have same property, and tan and cot have same property. But what we will do, we will convert this in tan, because हम लोग थोड़ा और easily उसको फिर कर सकते हैं ना. So कैसे इसको हम लोग tan में convert करेंगे? Just do one thing, इसको हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, या फिर cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा, ऐसे लिख दो. cot थीटा इज व्हाट, 1/tan थीटा, और ये तो ऐसे ही रहेगा नॉर्मली. कॉट थीटा इज 1/tan थीटा, सिंस कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा. अभी tan थीटा चाहिए तो रेसिप्रोकल कर दो. सो tan थीटा विल बी व्हाट, 1/√3. ओके, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3. tan का कौन सा एंगल 1/√3 होता है, tan 30. ओके, tan 30 इज 1/√3. 30 मीन्स π/6. सो एक एंगल मिल गया π/6. tan थीटा इज इक्वल्स टू tan π/6. अभी मुझे एक और एंगल ढूंढने का है. tan थीटा इज इक्वल्स टू tan है, और यहाँ पे tan रेशो ही चाहिए, दैट मीन्स मल्टीपल ऑफ पाई. सो वी हैव 4 मल्टीपल ऑफ पाई. ओके, नाउ प्लस में है, प्लस में ही चाहिए, दैट मीन्स साइन पॉजिटिव की पॉजिटिव ही रहना चाहिए. तो सब में से सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो है वो पॉजिटिव ही रहता है, साइन चेंज उसकी नहीं हो पाती है. तो थर्ड क्वाड्रेंट में मल्टीपल ऑफ पाई में क्या आ रहा है, पाई प्लस थीटा. सो वी विल राइट हियर पाई प्लस π/6. ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऐसे डाउट रहता है कि कहीं पे ये फॉर्मूला यूज़ किए, कहीं पे वो फॉर्मूला, कैसे समझेगा. तो उसके लिए अलाइड एंगल के टॉपिक्स एकदम क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले लेक्चर में तुम लोग को मैंने ये पूरा एक्सप्लेन की थी कैसे इसको ट्रिक्स से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जबकि ये 11th में हो चुका है. ठीक है, सो हम लोग कैसे करेंगे, tan है, tan ही चाहिए, दैट मीन्स मल्टीपल ऑफ पाई. तो मल्टीपल ऑफ पाई हम लोग के पास ऐसे 4 है. एंड नेक्स्ट क्या है, tan प्लस में है, आंसर फिर प्लस में ही चाहिए. तो सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव रहता है ना, और फर्स्ट में एक रहता है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो फिर 2π प्लस थीटा, तो वापस थीटा ही हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग यही लेंगे. सो थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से मल्टीपल ऑफ पाई क्या आएगा, पाई प्लस थीटा. ओके, पाई प्लस थीटा. ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला क्यों नहीं लेते हैं, बिकॉज हम लोग चेक कर चुके हैं ना, 2π प्लस थीटा वापस से थीटा ही हो जाता है ना, इसलिए. सो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan π/6. एंड और एक और हम लोग रीज़न दे सकते हैं कि tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए ये फॉर्मूला यूज़ किए. तो बहुत से बच्चों को डाउट हो रहा है कि फर्स्ट में भी तो पॉजिटिव है, तो फिर ये क्यों नहीं यूज़ कर रहे. तो ये 2π से ज़्यादा भी तो हो जा रहा है, हमको 2π तक का ही आंसर चाहिए रहता है ना. ठीक है, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू 6π प्लस 1 7π/6, सच दैट ये π/6 भी 0 और 2π के बीच में है, एंड दिस 7π/6 ऑल्सो लाइज बिटवीन 0 एंड 2π. ओके, देयरफॉर x is equals to π/6 and x is equals to 7π/6 are required principal solutions. Okay, so I hope these topics are clear to you. Okay, so now we will stop here. In the next lecture we will do more questions based on the principal solution.